Hello students, this is the chapter number 4, Forest Society, and today's subtopic is Rebellion in the Forest. This is page number 90. In many parts of India and across the world, forest communities rebelled against the changes that were being imposed on them. We will now discuss in detail one such rebellion which took place in the kingdom of Bastar in 1910. So, the people of Bastar. Bastar is located in the southernmost part of Chhattisgarh and borders Andhra Pradesh, Odisha and Maharashtra. The central part of Bastar is on a plateau. To the north of this plateau is the Chhattisgarh plain and to its south in the Godavari plain. A number of different communities live in Bastar such as Maria and Muria Gond, Dhurva, Bhatra, Halwa, etc. They speak different languages but share common customs and beliefs. The people of Bastar believe that each village was given its land by the earth and in return they look after the earth or by making some offering at each agricultural festival. In addition to the earth, they show respect to the spirits of the river, the forest and the mountains. Since each village is known where its boundaries lie, the local people look after all the natural resources within the boundary. If people from a village want to take some wood from the forest of another village, they pay a small fee called daan or man in exchange. Some villages also protect their forest by engaging watchmen and each household contributes some grain to pay them. Every year there is one big hunt where the headmen of villages in a pargans meet and discuss issues of concern including forests. अब चिल्ड्रन, जैसे कि हमने पिछले सब टॉपिक में देखा था कि अंग्रेजों ने जो फॉरेस्ट थे उन पर बहुत कुछ उन्होंने कंट्रोल कर लिया. जंगली जानवरों को उन्होंने यह बोलकर कि ये खतरनाक हैं और शिकार बहुत ज़्यादा मात्रा में कर दिया. और इसके बाद फिर कुछ जो बैन थे, जूम खेती पर बैन है और बहुत सारी चीज़ों पर बैन लगा दिए जाए. तो हिंदुस्तान और दुनिया भर में जो वन्य समुदाय जो थे उन्होंने अपने ऊपर ये जो बदलाव थोपे जा रहे थे उनके खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया. इन्हीं में से एक हम बस्तर का विद्रोह जो हुआ, जो 1910 में हुआ, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. तो बस्तर जो है वो छत्तीसगढ़ के जो साउथ पार्ट है उसके आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है. बस्तर एक सेंट्रल पार्ट, प्लेट्यू का सेंट्रल पार्ट है और इस प्लेट्यू के नॉर्थ में छत्तीसगढ़ का मैदान है और साउथ में गोदावरी का मैदान है. बस्तर के लोग मानते हैं कि हर एक गांव को उसकी जमीन धरती माँ से मिली है और बदले में वे प्रत्येक जो होते त्योहार वगैरह होते हैं उनमें वो धरती माँ को चढ़ावा चढ़ाते हैं. धरती के अलावा वो नदी, जंगल, पहाड़ों, इनको भी वो उतना ही अधिक मानते हैं. चूँकि हर गांव में अपनी अलग उनका एक सिस्टम होता है, इसलिए लोग गांव की सीमाओं के अंदर ही सारी जितनी भी जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं उनकी देखभाल करते हैं. यदि एक गांव से दूसरे गांव के जंगल में इन्हें जाना पड़ता है या थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो वो एक छोटा सा शुल्क दे देते हैं जिसे देवसारी या डांड या मान कहा जाता है और बदले में वो लकड़ी ले लेते हैं. अब कुछ गांव में लोग अपने चौकीदार भी रखते हैं ताकि वो जंगलों की हिफाजत कर सकें और वेतन के रूप में उन्हें रुपए ना मिलकर थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता है. और इस तरह से हर साल वो एक मीटिंग भी बुलाते हैं और जंगल से जुड़े हुए तमाम जो भी मुद्दे रहते हैं उन पर वो चर्चा करते हैं. द फियर ऑफ द पीपल. अब लोगों का भय जो था, डर था, वो क्या था और उसका रिजल्ट क्या हुआ. When the colonial government proposed to reserve 2/3 of the forest in 1905 and stop shifting cultivation, hunting and collection of forest produce, the people of Bastar were very worried. Some villages were allowed to stay on in the reserved forest on the condition that they worked
free for the forest department in cutting and transporting trees and protecting the forest from fires. Subsequently, these came to be known as forest villages. People of the other villages were displaced without any notice or compensation. For long, villagers had been suffering from increased land rents and frequent demands for free labor and goods by colonial officials. Then came the terrible famines in 1899 to 90s and again in 1907 to 1908. Reservations proved to be the last straw. अब जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसने जूम खेती पर रोक लगा दी और इसके साथ साथ जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन था उस पर भी रोक लगा दी। हंटिंग और कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इन सारी चीज़ों पर रोक लगाने से जो बस्तर के लोग थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और कुछ लोगों को रहने की परमिशन भी दी गई, तो इसलिए दी गई कि वो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनके लिए पेड़ों की कटाई करना या ढुलाई ये सारे काम वो मुफ्त में करेंगे और जंगलों को आग से बचाएंगे। और बाद में इन्हीं को जो है वो फॉरेस्ट विलेज कहा जाने लगा, वन ग्राम कहा जाने लगा। कुछ लोगों को बाकी जो लोग थे उनको बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी पूर्व सूचना के उनको वहां से उनके स्थान से हटा दिया गया और इससे लाखों बहुत सारे लोग जो थे वो बेरोजगार हो गए और जो परेशान होकर उनके मन में धीरे धीरे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उसके खिलाफ नफरत होने लगी। इसके बाद भयानक अकाल का दौर आ गया। पहले 1899 से 90s में और फिर 1907 से 1908 में। और यह जो अकाल था इसने जो फॉरेस्ट रिजर्वेशन था इसमें चिंगारी का काम किया। People began to gather and discuss these issues in their village councils. In 1910, mango boughs, a lump of earth, chilies and arrows began circulating between villages. These were actually messages inviting villagers to rebel against the British. Every village contributed something to the rebellion expenses. Bazaars were looted, the houses of officials and traders, schools and police stations were burnt and robbed, and grain redistributed. Most of those who were attacked were in some way associated with the colonial state and its oppressive laws. William Ward, a missionary who observed the events, wrote, "From all directions came streaming into Jagdalpur police merchants, forest peons, schoolmasters and immigrants." अब जो लोग थे बाजारों में त्योहारों पर इकट्ठे होकर इन बातों पर चर्चाएं करने लगे। 1910 में फिर आम की जो टहनियां हैं, मिट्टी के ढेले हैं और चिलीज है, मिर्ची हैं और जो एरोज हैं, तीर, वो गांव-गांव जाकर चक्कर काटने लगे और यह अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का संदेश था और इन्विटेशन था कि लोग आएं और इस बगावत में हिस्सा लें और मदद करें। अब बाजार लूट लिए गए, अफसर और व्यापारियों के घर, स्कूल, पुलिस थाने, इनको लूट लिया गया, जला दिया गया और फिर अनाजों का फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन किया गया, फिर से पुनर्वितरण किया गया। जिले में जितने भी हमले हुए उनमें से ज़्यादातर लोग कॉलोनियल जो स्टेट थे और जो इस कानून से जो परेशान थे वो उससे जुड़े हुए लोग थे। और इन घटनाओं के एक जो आई विटनेस हैं रहे हैं विलियम वर्ड, उन्होंने लिखा कि पुलिस वालों, व्यापारियों, जंगल के जो मर्चेंट्स हैं, पुलिस प्यून्स, फॉरेस्ट प्यून्स हैं, इन सब को, स्कूल मास्टरों को और इन सब की जो भीड़ थी वो कहाँ चली आ रही थी? जगदलपुर चली आ रही थी। अंग्रेजों ने बगावत को कुचलने के लिए सैनिक भी भेजे और आदिवासी नेताओं ने बातचीत करनी चाहिए, लेकिन अंग्रेज फौज ने उनके जो टेंट्स थे उनको घेर कर उन पर गोलियां चला दी। और इसके बाद जो जितने भी लोग जो रेवोल्यूशन में सम्मिलित थे उन पर कोड़े बरसाए गए और सजा देते हुए सैनिक गांव-गांव घूमने लगे। काफ़ी सारे गांव खाली कर गए और लोग जंगलों की ओर भाग गए। इसमें सक्सेस ये मिली कि 1910 से पहले जितने भी रिजर्वेशन वाले क्षेत्र थे उनका जो एरिया था लगभग आधा कर दिया गया।
The story of forest and people of Bastar does not end there. After independence, the same practice of keeping people out of the forests and reserving them for industrial use continued. In the 1970s, the World Bank proposed that 4,600 hectares of natural sal forest should be replaced by tropical pine to provide pulp for the paper industry. It was only after protests by local environmentalists that the project was stopped. बस्तर के जो लोग थे उनका स्ट्रगल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। स्वतंत्रता के बाद भी जंगलों को रिजर्व करने की जो नीति थी वो कायम रही और 1970s में जो विश्व बैंक था उसने प्रस्ताव रखा कि कागज के लिए, पेपर बनाने के लिए जो पल्प चाहिए होता है उसके लिए लगभग 4,600 हेक्टेयर जो एरिया है उसमें साल फॉरेस्ट को रिप्लेस करके वहां पर जो है पल्प इंडस्ट्री लगा दी जाए, पाइन ट्रीज लगा दिए जाए, ट्रॉपिकल पाइन ट्रीज और पल्प इंडस्ट्री लगा दिया है। हालांकि बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट थे जिन्होंने उसका विरोध किया उस प्रोजेक्ट का और फिर वह स्टॉप कर दिया गया, रोक दिया गया। चिल्ड्रन, अब हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा इंडोनेशिया की तरफ देखेंगे कि वहां पर इस वक्त ये सारा जब चल रहा था बाकी दुनिया में तो इंडोनेशिया में क्या हो रहा था। पहले तो अभी हमारे भारत में बस्तर का रेवोल्यूशन हुआ और उसके बाद अब फिर इंडोनेशिया के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।